Hello everyone, I welcome you all in today's class. So yesterday as we have finished 6 questions of exercise 8.1, today we will try to finish this exercise, okay. So come to your question 7. Your question 7th is cot theta value is given 7 upon 8. Two parts are there. First part is we need to find out the value of 1 plus sine theta, 1 minus sine theta. Along with this 1 plus cos theta and 1 minus cos theta. Fine, this is your first part. Second part is we need to find out the value of cot square theta. Okay, no problem. So first of all, as we have the ratio, we will try to find out the triplet. Fine, if this is theta, okay, if this is theta, so for this cot theta, as we know, it is side adjacent to the angle upon side opposite to the angle. So 7 here, 8 here. When you use Pythagoras triplet or Pythagoras theorem, see why I have used k, just because whenever you are converting any ratio into numbers, you will add any variable along with this. Okay, so this will be 113k. Okay, I have written directly, but if you have any doubt, you can use theorem. It will be 49, 64, 49 plus 64, 113. Okay, so come to the first part. First part is we want the value of sin theta and cos theta. तो पहले से इसकी हम वैल्यू निकाल कर रखते हैं, ठीक है. sin theta equals to, for this sin theta will be 8 upon 1 root 113, and cos theta it will be 7 upon root 113. Okay, now from this statement, I hope you are knowing one identity. Okay, algebraic identity. It is a plus b into a minus b equals to a square minus b square. So 1 square minus sin square theta. Similarly in denominator, 1 square minus cos square theta. Put up the values. Okay, sin theta value is 1 minus, अब 8 का स्क्वायर करोगे, डायरेक्ट लिख लेते हैं ना, 64 अपॉन 113. 113 कैसे आया, रूट का जब आप स्क्वायर करते हैं ना, जैसे ये था 113 इन रूट, और इसका आप स्क्वायर करते हैं तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा. और उसके पीछे रीजन ये है कि रूट का मतलब होता है पावर ऑफ 1/2, एंड 1/2 से ये 2 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है. दैट्स व्हाई वी विल गेट द नंबर ओनली. ओके, नेक्स्ट divide by, it will be 1 minus 7 49 113. okay, so थोड़ा सा रफ करते हैं अभी. by using, ठीक है, यहाँ पर आप एलसीएम ले लें तो 113 माइनस 64 अपॉन 113, रेसिप्रोकल कर रहे हैं इनका, 113 अपॉन 113 माइनस 49. फर्दर इट विल बी 49 अपॉन 113 कैंसिल ही कर देते हैं डायरेक्ट, एंड इट विल बी 64. सो दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. ओके, दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, 49 अपॉन 64. सेकेंड आपको पूछा गया है कॉट स्क्वायर थीटा. तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा आपको ऑलरेडी वैल्यू दी है, कॉट स्क्वायर इसी का स्क्वायर कर देंगे तो ये भी होगा 49 अपॉन 64. ठीक है, शायद समझ आया होगा. सबसे पहले आपको क्या करना है, जो रेशियो है, रेशियो से आप फिगर बनाओ. फिगर बनाने के बाद आप जो है हाइपोटेनियस फाइंड आउट करो. आफ्टर फाइंडिंग हाइपोटेनियस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस थीटा, and after finding the value of sine and cos theta, put up the value in the given relation and solve it further by taking LCM. okay, and you will get both the answers same. ठीक है, इन दोनों के आंसर जो है आपके सेम आ रहा है, 49 upon 64. then is your question 8. रूट का अगर कंसेप्ट नहीं समझ आया तो एक बार फिर से बता देते हैं. हमने लिखा था कि रूट 113,
ठीक है, होल स्क्वायर। अब इसका मतलब होता है 113, रूट का मतलब होता है हाफ इंटू 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो सिर्फ तुम्हारे पास क्या बचा 113। इस तरीके से जो है वहां पर हमने किया हुआ है। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन 8 पर। क्वेश्चन 8 आपको दिया हुआ है, इफ 3 cot, ए की जगह पे हम यूजिंग थीटा, ठीक है, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद थीटा, सो ओके, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 4, फाइन, हमको ये चेक करना है ना, वी नीड टू चेक दैट 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta is equal to cos square theta minus sin square theta और नॉट। ठीक है, ये इसके इक्वल है या नहीं हमको चेक करना है ना, प्रूफ नहीं करना है। प्रूफ और चेक में डिफरेंस होता है। ठीक है, प्रूफ का मतलब होता है कि ये होगा ही, ठीक है, चेक का मतलब होता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फाइन, तो हमको ये चेक करना है। ठीक है, इट मे पॉसिबल, इट मे नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं, हमारे पास आया cot थीटा इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि ट्रिपलेट क्या बनेगा आपका, 3, 4 एंड 5। तो हाइपोटेनियस आपका जो बन जाएगा बीबी, इफ इट इज थीटा, फाइन, सो 3, 4 एंड 5, दिस विल बी द ट्रिपलेट ओवर हियर। तो वैल्यू हमको चाहिए साइन, कॉस और टेन की। सबसे पहले ये वैल्यूज ही निकाल देते हैं, यहां लिख लेते हैं साइन थीटा। For this, sin theta will be 4/5. Cos theta will be 3/5. And tan theta is reciprocal of cot, that means 3/4. I hope till here it is clear. तो पहले हम ये ले रहे हैं ना, इसको हम LHS कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम RHS कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सो आई एम टेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल LHS। 1 minus tan square theta, 1 minus tan की वैल्यू कितनी है आपकी 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 plus 3/4 होल स्क्वायर। ओके, नाउ 1 minus 9/16 अपॉन 1 plus 9/16। शैल आप दिस, यहाँ साइन कॉस की वैल्यू चाहिए पड़ेगी हालांकि। This I'm going to write over here. Okay, it will be 16 minus 9 upon 16 into, ठीक है, एलसीएम लेके इसको हम ऊपर ले रहे हैं, 16 plus 9, 16 cancel, it will be 7/25। क्लियर, मीन्स जब आप LHS को सॉल्व करेंगे 1 minus tan square theta and 1 plus tan square theta को, ठीक है, ये जो आपको LHS और RHS में दोनों दिए हुए हैं, तो आप जब इसको LHS को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है कितना 7/25। नाउ वी विल चेक RHS। ओके, तो RHS में क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देख लेते हैं, 3/5 होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 4/5 होल स्क्वायर। ओके, 9 upon, wait, is it cos square minus sin square? The value, I think I have written wrong. Wait, let me try. The value of cot theta was 4, 3 and 5. If this is theta, so cos theta है ना, cos theta will be 4/5. Yes, here it will be 4 and here it will be 3. Okay, so it will be 16/25 and 9/25 माइनस कर लें, आपका आ जाएगा 7/25।
So LHS equals to RHS. Yes, both are equal. Means ये दोनों जो LHS और RHS हमको दिए थे, है ना, ये क्या है, इक्वल. ओके. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन 9. Question 9 is value of tan A. I'm writing tan theta. Tan theta is given 1 by root 3. And we need to find out two values over here. First is, अच्छा यहाँ ABC लिखना ही पड़ेगा ना. I'll tell you why. Sin A cos C plus cos A sin C. Second is cos A cos C sin A and sin C. Let's see. क्योंकि यहाँ पे थीटा लिखने से काम नहीं होता है ना. टू एंगल्स आर गिवन ओवर हियर. पहले हम बना लेते हैं अपना फिगर. ए बी एंड सी. ठीक है, बी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर एक्यूट एंगल जो है ए और सी लिए गए. ठीक है, तो दिस इज 90 डिग्री. नाउ tan A, फॉर दिस tan A इज K. tan A की वैल्यू है 1/√3. तो ये होगा आपका साइड opposite to the angle upon side adjacent to the angle. Fine. And by using Pythagoras theorem you will get it 2K. Okay, आप देख सकते हैं it will be square of √3 is 3 plus 1 4 और √4 is 2. तो फर्स्ट हमको वैल्यू चाहिए. हम एक बार यहाँ पर सारी वैल्यू निकाल लेते हैं. साइन A. साइन A की वैल्यू क्या होगी फॉर दिस? साइन A will be 1/2. साइन C, साइन C यहां से देखें तो साइन C की वैल्यू होगी √3/2. कॉस A, कॉस A की वैल्यू होगी आपकी √3/2 एंड कॉस C, कॉस C विल बी 1/2. ओके फाइन. नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यूज. फर्स्ट इज साइन A into cos C plus cos A √3/2 into sin C √3/2. Okay, no issue. 1/4 √3 into √3, 3/4, and ultimately it will be 4/4. That means 1. Okay, first in this manner you can solve. Second is, I hope you have done. Next, second part. Second part, cos A. वैल्यू पुट अप कर लेते हैं. √3/2 into cos C 1/2 minus sin A 1/2 into sin C √3/2. So it will be √3/4 minus √3/4. Both will get subtracted and ultimately your answer will be 0. Fine. So answer of first part will be 1 and answer of second part will be 0. Fine. Next is your question 10. Question 10. In a right angle triangle PQR, one relation is given. Fine. Your question 10 is just like your example 5th. Fine. आपके example 5th के जैसा है question 10. If I draw the figure over here, P and its right angle at Q are. So PQ is given 5 centimeter. Okay.
देन दीज टू, इन दोनों साइड्स का सम हमको 25 दिया है, तो अगर इसको हम x मान लें तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस एक्स. ओके, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, हमको फाइंड आउट करना है साइन p, देन कॉस p एंड देन टेन p. ओके, नो इश्यू. So we will use Pythagoras theorem, okay, by using Pythagoras theorem. Okay, so Pythagoras theorem is Pythagoras theorem is hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. 25 minus x equals to 5 square प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, थीटा जो है कहीं पर भी ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं. भी आई एम नॉट टेकिंग थीटा ओवर हियर. ये आपके पास हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाएं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो 50x. 25 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 25 यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, सो इट विल बी 600 इक्वल्स टू 50x cancel 12 times, so x equals to आ गया आपका 12. So this is of 12 centimeter, and if it is of 12 centimeter, this will be of 13 centimeter. One more thing, आप यहाँ पर एक बहुत अच्छा लॉजिक भी लगा सकते थे ना कि 5 है, दोनों का सम 25 है, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट आपका बन रहा होगा ना. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू टू लर्न ट्रिपलेट्स, है ना. ये सारा जो है सॉल्व करने के लिए आपका टाइम जो है वो कंज्यूम नहीं होने देता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो आप बहुत अच्छे से ये निकाल लेंगे ना. तो 5 12 एंड 13 आपका ट्रिपलेट बन रहा है. ओके, सो वी गॉट द वैल्यूज 12 एंड 13. नाउ वी कैन फाइंड आउट दीज 3 वैल्यूज. यही डायरेक्ट निकाल देते हैं. ठीक है, दिस वी गेट 12. दिस इज थीटा, है ना. साइन पी, तो साइन पी की वैल्यू क्या होगी, it will be 12 upon 13 cos p, 5 upon 13 and 10 will be 12 upon 5. Okay, now next is your question number 11. First of all, you write it down this. Question 11th C. It is state whether the following are true or false and justify your answer. Justify your answer means whatever B is the answer. ठीक है, आप उसको true बोलें या false बोलें, दोनों ही कंडीशन में आपको बताना है why, है ना. If it is true then why, and if it is false then why. So first condition is the value of 10a is always less than 1. Is it possible? क्या हमेशा ये जो है लेस देन 1 हो, कोई कंपल्सरी नहीं है. ठीक है, सो इट विल बी फॉल्स. एंड व्हाई, रीजन कैन यू गिव. सो रीजन विल बी, सी इट्स वैलिड रीजन आई कैन गिव यू व्हेन वी विल स्टडी द टेबल. ठीक है, लेकिन यहाँ भी आप लिख दें कि इट इज नॉट कंपल्सरी बिकॉज इट इज नॉट सो दैट ऑलवेज द परपेंडिकुलर इज लेस देन बेस. ठीक है, माइट बी, it might happen that perpendicular is more and it might happen that base is more. Fine. So it is not so that the value of 10 is always less than 1. Then sec equals to 12 upon 5 for some value of a. Obviously it can be possible. Fine. कोई भी वैल्यू जो है यहाँ पर फिलहाल में पॉसिबल हो सकती है by using the थीटा. ओके, कोई भी थीटा जब हम ले रहे हैं तो उसमें ये वैल्यूज पॉसिबल हैं if we have the sign. Then third, cos A is the abbreviation used for cosecant, isn't it? No. Yeah. No. ठीक है, cosecant is का abbreviation होता है cosec. ठीक है, and cos is the abbreviation of cosine. Then cot A is the product of cot and A. No, it's not the product. Okay, it's रेशियो, है ना. ये रेशियो के लिए हम बोलते हैं कॉट ए, मीन्स व्हेन थीटा इज ए, मतलब एंगल हमको ए दिया हुआ है एंड द रेशियो वी आर यूजिंग इज ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर. इट्स नॉट प्रोडक्ट रूल.
Then last is sin theta equals to 4 by 3 for some angle theta. Sin equals to 4 by 3. Logical answer. Answer is wrong, but you need to find out why it is wrong. Okay, very simple it is. If you think, आज का फिगर बना के देखिएगा, आपको समझ में आएगा. Okay, so here we have finished exercise 8.1. चलो आंसर इसका बता ही देते हैं. 4 by 3 बोल रहा है ना, तो हाइपोटेनियस क्या है आपका 3. इज इट पॉसिबल कि हाइपोटेनियस 4 से कम होगा? इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो आप इसका आंसर लिख लीजिएगा false, and reason is hypotenuse can never be less than perpendicular than this. So here we have finished exercise 8.1. Now your task is, for today's task is at page number 185. ठीक है, 185 पेज नंबर पर आपको एक टेबल दी हुई है, टेबल 8.1. ठीक है, आपको ये टेबल बहुत अच्छे से पढ़ना है आज, एंड इफ पॉसिबल आप इसको लर्न करें. Okay, and tomorrow we'll see how to learn this table. It's very, very, very important table. Okay, so for today it's enough. Thank you so much.